देश के हर हिस्से में योग अभ्यास के जरिए योग दिवस मनाया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह से ही दुर्गापुर के एमएएम के मैदान में कई युवक युवतियां योग अभ्यास में हिस्सा लेते दिखे। इस्पात नगर दुर्गापुर की एक इमारत में ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक विजेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी योग दिवस मनाते दिखे। इसके अलावा ईसीएल की ओर से खनन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में योग दिवस का आयोजन किया गया। वहां ईसीएल अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के कई लोगों को भी योग दिवस में भाग लेते देखा जा सकता है। প্রচলিত অগ্নি দীপশিখাটিকে জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরো আলোকময় করার জন্য আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আমরা থাকবো না এই নিশ্চিত কথাটার মধ্য দিয়ে শুধু থেকে যায় আমরা যা করে যাব তার কর্মফলটুকু। আসুন সকলে মিলে এই ইন্টারন্যাশনাল যোগ ডের যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু করা যে তমসো মা জ্যোতির্গময়া লাইটিং অফ দিস ওয়ার্ল্ড ইটস সিম্বলাইজিং পিউরিটি প্রসপারিটি অ্যান্ড উইজডম। আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও আমার মনের যত কালিমা মুছিয়ে দাও। হাততালি खींचिए पूरा ऊपर की तरफ। पर्वतासन। अब हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाइए। दाहिने हाथ से मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर रहे, पीछे दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के एनएसबी रोड इलाके में स्थित एक बर्तन की दुकान में चोरी होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बारे में दुकान के मालिक गोपीनाथ कर्मकार ने बताया कि गुरुवार को उनकी दुकान बंद थी। आज शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे जब उनकी दुकान के कर्मचारी दुकान खोलने आता है तो देखा कि अपराधियों ने दुकान की टीन में छत में छेद कर दिया है। उन्होंने कहा कि रानीगंज थाने को सूचना दे दी गई है और थाने के अधिकारी आए और जांच शुरू की। आज दुकान बंद होने के बाद जब दुकान खुली तो देखा कि अपराधियों ने उनकी दुकान से टीन की छत तोड़कर करीब 35,000 रुपये नकद और करीब 3 लाख रुपए के बर्तन की चोरी कर ली है। वही दुकान के मालिक की पत्नी उमा कर्मकर ने कहा कि गुरुवार को उनकी दुकान बंद थी। आज सुबह जब उनकी दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान की टीन छत को तोड़कर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि करीब 35,000 रुपये नकद और 3 लाख रुपए के करीब बर्तन चोरी हो गई है। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। শহরতলিতে দিনের পর দিন চুরি ডাকাতির ঘটনা বেড়েই চলেছে। এখন আমরা ঠিক রয়েছি খনি শহর রানীগঞ্জ শহরতলির রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ, যেটি বাজারের ভেতর দিয়ে গেছে, রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 60-এর উপর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস রোড। এই আপনারা সরাসরি দেখছেন আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। সেই দৃশ্য আমি আমার সহযোগীকে সরাসরি দেখাতে বলবো। এই সেই বাসনের দোকান যেখানে ঘটে গেছে চুরির ঘটনা, এমনটাই আমরা জানতে পারছি এই এরিয়ার স্থানীয়দের কাছ থেকে। এবং দোকানের অনার মালিক যিনি রয়েছেন গোপীনাথ কর্মকারের সাথে আমরা ডাইরেক্ট সাক্ষাৎকার করলাম এবং তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছে আমরা সকালবেলায় আনুমানিক 9:30-10টার সময় যখন আমার স্টাফ দোকান খুলতে আসে, যখন দোকান খোলা হয় তখন আমরা যখন দোকানের ভিতরে প্রবেশ করি আমরা দেখি ক্যাশ বাক্স খোলা
এবং দোকানের কিছু জিনিসপত্র সামগ্রী যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে, এমনটাই দাবি উঠে আসছে গোপীনাথ কর্মকারের কাছ থেকে। এবং আপনাদেরকে জানাই, সরাসরি গোপীনাথ কর্মকার আমাদেরকে দোকানের ভেতরে নিয়ে গেল এবং সরাসরি আমাদেরকে দেখালো এই দোকানের ওপরে যে সেলিং রয়েছে, যেটা ছাদ, সেই ছাদকে ক্র্যাক করে একটা স্কোয়ার টাইপের করে সেখান থেকে এই মানে যারা মানে ইয়েরা ভেতরে নেমেছে চোরেরা এবং জিনিসপত্র চুরি করছে। ওনার সাথে কথা বলার পর আমরা জানতে পারলাম বস্তায় বাঁধা ছিল মানে কাঁসার বাসনপত্র, মোট মিলিয়ে আনুমানিক অঙ্ক দাঁড়াচ্ছে যেটা ওনার বক্তব্য অনুযায়ী 2 থেকে 2,20,000 টাকা, এবং ক্যাশ বাক্সকে লিকুইড ক্যাশ ছিল 30 থেকে 35,000 টাকার মতো, এমনটাই দোকানদারের দাবি। এবং সঙ্গে সঙ্গে রানিগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, পুলিশ তৎক্ষণাৎ খবর পেয়ে এরিয়াতে পৌঁছায়। সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে, এবং পুলিশ নিজের ইনভেস্টিগেশন ইতিমধ্যে চালু করে দিয়েছে। আসুন পুরো এরিয়া এবং আরও যেসব পারিপার্শ্বিক যে লোকেরা রয়েছে তারা আমাদেরকে শহরতলিতে চুরির ঘটনা নিয়ে কী জানাচ্ছেন। দোকান খুলতে এসে দেখি 9:40 দোকান খুলতে এসে দেখি আমাদের স্টাফ দোকান খুলতে এসে দেখে পুরো দোকান প্রতিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। উপর থেকে টিনটা কাবল দিয়ে ছেড়ে একজনের ভেতর সিলিং থেকে ঢুকে প্লাইটা ফাটিয়ে ভেতরে ঢুকে জিনিসপত্র সব চুরি করে নিয়ে চলে যায় উইথ ক্যাশও। আচ্ছা, লিকুইড ক্যাশ কত ছিল বা? লিকুইড ক্যাশ মোটামুটি 30 থেকে 35,000 টাকা। এবং আপনার যে বাসনপত্র মোটামুটি 4 বস্তার মতন কাঁসার থালা নিয়ে গেছে। কত অ্যামাউন্ট হবে? অ্যামাউন্ট হবে মোটামুটি 40 ওই মোটামুটি 2 লাখ থেকে 2.5 লাখ এরকম হবে। এখনও মানে এতটা অনুমান লাগাচ্ছি, এখনও আমি দেখিনি ভালো করে। আচ্ছা, পুলিশকে রানিগঞ্জ থানাকে ইনফরমেশন? হ্যাঁ, রানিগঞ্জ থানাকে ইনফর্ম করেছি। হ্যাঁ, রানিগঞ্জ থানা এসছেন। হ্যাঁ করছেন, হ্যাঁ এসেছেন, দেখছেন ইনভেস্টিগেশন করছেন। আচ্ছা, কাউকে সন্দেহ বা চোখে বা কিছু সন্দেহের চিত্র? না, আপাতত সন্দেহ তো কাকে সন্দেহ করবো, সম্বন্ধে সেরকম নেই। রাত্রে কে বা কারা করেছে বলা মুশকিল। জায়গাটার নাম হচ্ছে NSP রোড। আচ্ছা, আপনার নাম? গোপীনাথ কর্মকার, আমি ওনার। কাল তো পরশু দিনকে দোকান বন্ধ করা, কাল তো বৃহস্পতিবার ছিল, দোকান বন্ধ ছিল। এখন সকালে যখন ও খুলতে যায় শাটার খুলে দেখছে সব কিছু ভাঙা, আর যত এখানে কাঁসা পিতলের থালা ছিল, ভেতরে আরও অনেক জিনিস গেছে, সেগুলো এখন একে একে দেখছি। আর ক্যাশ ছিল 25-30-এর মতো ক্যাশ ছিল। আচ্ছা, দোকানের মানে যখন ঢুকলেন মানে কোন জায়গা দিয়ে ঢুকেছে যদি আমাদের একটু জানান? আমাদের ওই ওপর থেকে চাল সিলিং থেকে কেটে ঢুকেছে, টিনের চাল থেকে ঢুকেছে, শাটার থেকে ঢুকেছে। মানে 25-30,000 টাকা লিকুইড ক্যাশ গেছে। লিকুইড ক্যাশ গেছে আর মাল প্রচুর গেছে। মাল কত টাকার হতে পারে? মাল আমার কমসে কম 2.5-3-এর মতো মাল হবে। 2.5-3 লাখ টাকা। 2.5-3 লাখ। কাঁসা পেতলেরই জিনিস গেছে, আদারওয়াইজ ছোট জিনিস যেগুলো ভারী জিনিস সেগুলোই আমার গেছে। আচ্ছা, আপনার? পুলিশ এসছে, দেখি এবার। আচ্ছা, আপনার নাম? রুমা কর্মকার। জায়গাটার নাম? NSP रोड। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के मंगलपुर से दुर्गापुर जाने वाली सड़क के पास पेट्रोल पंप के सामने एक 10 चक्का वाहन में भीषण आग लगने से लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। आपको बता दें कि इस तरह के हादसे शिल्पांचल में बहुत देखने को मिल रही है। कभी कार में आग तो कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आग लग रही है। ये खौफनाक मंजर रानीगंज के मंगलपुर में भी देखने को मिला, जब मंगलपुर के एक पेट्रोल पंप के सामने एक 10 चक्का गाड़ी डिवाइडर में टकराकर सर्विस रोड पर आ गई और अचानक से आग लग गई। इसकी तपीश इतनी ज़्यादा थी कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। इस घटना की सूचना जब पंजाबी मोड़ फाड़ी को मिली तो पंजाबी मोड़ फाड़ी के IC अपनी पुलिस बल को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही रानीगंज दमकल विभाग को खबर दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ी भी आ गई और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नीचे जा रहे
है कि एक ट्रक पे भीषण आग लगा, कितने देरी पे आप पहुंचे, कितना तक आग कंट्रोल पाए? আমাদের দলটা যাবার মাত্র আমরা সব বসেই ছিলাম ইউনিফর্ম পরে, আসতে যতটুকু সময় বাস আমরা রেডি ছিলাম, আসতে মোটামুটি 7 থেকে 10 মিনিট লেগেছে জানিয়েছে এখানে আসতে। এসে দেখছি ট্রাকটার ঘোরা চলছে, এখন ট্রাক কি মাল আসছে, এসে আমরা তাড়াতাড়ি ব্রাঞ্চ খুলে আগুনটা কন্ট্রোল করে নিয়েছি। আগুন টোটালি নিভে গেছে, এখন দেখার দেখি ভিতরে কি আছে, আরও আমরা সার্চ করছি কোথাও আগুন থেকে থাকলে। अच्छा, जिस तरह सर आग लहक रहा था, क्या बड़ा हादसा होने का अंदेशा था? না, একদম নর্মালি এর থেকে তো হয় না, সামনাসামনি কোনো ইয়ে নেই। পরে ট্রাকটাই চলছে, ট্রাকটা আরও বেশি ক্ষতি হতে পারতো, আরও ট্রাক জ্বলতে পারতো। माने जानी नुकसान नहीं हुआ कुछ? अगर देखा जा रहा है कि आग जो है सिर्फ कैबिन तक लगी थी, लेकिन अगर टैंकर तक अगर आग पहुंची तो लोगों को कितना क्षति चल सकता था? पेट्रोल डीजल में आग लगता था तो ज़्यादा सामने पेट्रोल पंप था और ज़्यादा बढ़ सकता था। माने जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ? नहीं, जान का कोई नहीं था, माली नुकसान हुआ। ओके, थैंक यू सर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल का सियासी मैदान बीजेपी और राज्य में सरकार चल रही थी। टीएमसी के बीच एक और लड़ाई का गवाह बनने वाला है। बंगाल के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला होना तय है। 10 जुलाई को रायगंज, रानाघाट, दक्षिण मानिकतला और बगदा में उपचुनाव होगा। मानिकतला से तृणमूल कांग्रेस ने सुप्ति पांडे को उम्मीदवार बनाया है। सुप्ति पांडे लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और उन्होंने कहा कि उनके मुकाबले यहां पर कोई नहीं है। हालांकि भाजपा ने इस सीट से कल्याण चौबे भट्टाचार्य आया है, लेकिन सुप्ति पांडे का मानना है कि उनके मुकाबले कोई नहीं है। सुप्ति पांडे का कहना है कि इलाके में काफी विकास कार्य किया गया है, इसलिए जनता विकास के नाम पर तृणमूल कांग्रेस को ही जिताएगी। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सुप्ति पांडे ने कहा कि मुझे लड़ने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। 2017 সালে সব থেকে বেশি তৃণমূল ভোট পেয়েছিল এবং তারপরে সিপিআই। 2021 সালে তৃণমূলের পরে সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে বিজেপি। এইবারে আপনার লড়াইটা কার সাথে? লড়াই করবো, কাউকে তো খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তো লড়াই করার জন্য রেডি হয়ে আছি, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না যে লড়াইটা করব। আগে সামনে আসুক তবে তো লড়াই করব। একজনের সঙ্গে লড়াই করেছিলাম, তিনি হেরে গেছিলেন, ওরে কেস করেছিলেন, আমরা নাকি মিছিমিছি জিতেছি। তারপরে 2.5 বছর এত বড় এলাকা একটা তার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল মানুষজন, এমএলএ ফান্ড পাননি, ফলে এলাকার উন্নতি হয়নি। এলাকার লোক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো পড়েছিল আমার মানিকতলা। অনেক দিন বাদে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি সুপ্রিম কোর্ট অব্দি কেসটা নিয়ে, এবং সুপ্রিম কোর্ট ইমিডিয়েট ডিসিশন নেয় যে এই জিনিস বন্ধ হোক। যিনি পিটিশনার তিনি তো আসেনি না, তাহলে কেস কিসের? পরের দিন তিনি সে গিয়ে কেসটা তুলে দেন, কারণ ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়। তো তারপরে সুপ্রিম কোর্ট নিজেরাই মানে উদ্যোগ নেন, নির্বাচন কমিশন একটা ওনাদের কাছে একটু স্কোল্ডেড হয় যে কেন হচ্ছে না, আপনারা না ডেট দিলে আমরা ডেট ডিক্লেয়ার করব। তারপর ডেট ডিক্লেয়ার হয়। এইসব করতেই তো সময় চলে গেল। হঠাৎ করে এলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট করলেন, কোনো চয়েসই আর রাখলেন না, বললেন ওই আমার ক্যান্ডিডেট। তারপর থেকে এখনো অবধি আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম না কে আমার বিরোধী, কারণ শুনেছি মিস্টার চৌবেই আসছে, এলে ভালো। উনি এলাকাটাকে এর আগেরবার একটু ঘুরে টুরেছিলেন, দেখেছেন। উনি এলে নিশ্চয়ই লড়াই আমাদের নীতিগত লড়াই হবে, ব্যক্তিগত তো নয়। ওনার নীতির সঙ্গে আমাদের দলের নীতির যে লড়াই। আর সিপিএম কংগ্রেসের সেরকম সংগঠন নেই। সত্যি কথা বলতে আপনাকে যদি বলি, অন ক্যামেরা বলি, সিপিএম এর ম্যাক্সিমাম লোক আমাদেরই ভোট দেয়। অন্য কোথায় অন্য কোন নির্বাচনে কি দেয় কিনা জানি না, বিকজ আমাদের বাড়িতে সাধনবাবু থাকাকালীন বা অনিন্দ এটা মানে থাকাকালীন এখানে কাউকে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করে পরিষেবা দেওয়া হয় না। আপনি কষ্ট নিয়ে এলে আপনারটা দেখা হয়, আর একজন তার প্রয়োজন নিয়ে এলে একবারও জিজ্ঞেস করা হয় না আপনি কোন দলের সমর্থক।
সেই জায়গা থেকে আলাদা শ্রদ্ধার জায়গা আছে আমাদের। এবং সিপিএমের বহু সিপিএম, কংগ্রেসের ঘরানার আমরা, আমাদের তো সাধনবাবু তো ইন্দিরা গান্ধীর হাতে তৈরি, তো তারা তো দেয়, সিপিএমও দেবে। কাজে বিজেপি যেটুকু সেটুকু দেখা যাবে, আসুক সামনে। যদি আবার বিজেপি হেরে যায় তাহলে কি মনে হচ্ছে আবারও ওরা কেস করতে পারে বা এমন কিছু করুক বাবা, কেস করুক, যা খুশি করুক। এবার ওরা তখন বলেছিল যে মেয়েদের দাদা 500 করে নাকি টাকা দিয়েছে, যে মানুষটা 45 বছর ধরে লাগাতার একটা জায়গা থেকে, একটা ফেক কেস দিয়েছিল। আমার বেলা বলবে, আমি এই যে আমার ভাইটাইগুলো দাঁড়িয়ে আছে, বলবে এদেরকে আমি 500 করে টাকা দিয়েছি, দিয়ে আমার বলতেই পারে, অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয়, বলতে পারে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज के शिशु बागान जंक्शन एनएसबी रोड, जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 बन गया है, उसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लिनकंठ होटल के बगल की गली में एक उद्योगपति स्वर्गीय चंडी केड़िया का घर है। प्रवर्तन निदेशालय का विशेष अभियान शुक्रवार सुबह से चल रहा है। पता चला है कि 4 गाड़ियों में सेंट्रल फोर्स के साथ ईडी का विशेष ऑपरेशन आज सुबह करीब 5:30 बजे तक चल रहा है। इस दिन 6 सदस्यों की टीम के साथ सुबह 5 बजे विशेष ऑपरेशन चल रहा है। मालूम हो कि टीम में एक महिला सदस्य भी है। इस व्यापारी के बारे में जहां पता चला है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में कई फैक्ट्रियां हैं, बंगाल के बाहर भी कई कारखाने हैं। इन सभी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ इलाके में किसी हेराफेरी को लेकर ईडी का यह ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बाहर कई कार चालकों ने कहा कि वह सीआरपीएफ के साथ कोलकाता में ईडी कार्यालय से आए हैं। स्वर्गीय चंडी केड़िया के 4 पुत्र दिलीप केड़िया, कुलदीप केड़िया, प्रदीप केड़िया एवं संदीप केड़िया के घर पर छापेमारी से शहर में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि एनएसबी रोड के इस घर में प्रदीप केड़िया और उनके पुत्र राहुल केड़िया रहते हैं। दिलीप केड़िया कोलकाता में, संदीप केड़िया हावड़ा में और कुलदीप केड़िया दुर्गापुर में रहते हैं। सभी भाइयों के अपने अपने कारखाने हैं। प्रदीप केड़िया का मेजिया में स्पंज आयरन कारखाना है। दिलीप केड़िया कोलकाता में रहते हैं और दुर्गापुर में कारखाना चलाते हैं, जो कि फिलहाल बंद है। संदीप केड़िया का भी एक स्पंज आयरन कारखाना है, जो कि फिलहाल बंद है। वही कुलदीप केड़िया की एक सीमेंट प्लांट और एक फाउंड्री प्लांट है, लेकिन फाउंड्री प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर आज केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो छापेमारी हुई है वह किस वजह से हुई है। कोलकाता के कहाँ? ईडी ऑफिस से यहाँ कितना बजे लगभग पहुँचे? 5:30। अभी क्या रेट चल रहा है? आप लोग क्या लाए थे? ऑफिसर लाए थे ना फोर्स लाए थे? हाँ? कितना ऑफिसर आया लगभग? हाँ? आपको पास 4, आपका 3 और उधर सब मिले 4 ऑफिसर आए। और सीआरपीएफ ना सीआईएसएफ? सीआरपीएफ। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? आज कितना बजे? आज हम लोग यहाँ 6 बजे आए, सवेरे 6 बजे। तो मैंने यहाँ कितना आदमी कुल मैंने सीआईएसएफ था क्या? हम लोग अपने सीआरपीएफ था। सीआरपीएफ कहाँ से आ रहे आप लोग? हम लोग कलकत्ता ईडी ऑफिस। यहाँ क्या रेट चल रहा है क्या? मैंने किसका घर में चल रहा है ये रेट, जानते हैं कुछ? हम लोग को ये सब मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू, एमडी शाहजहां। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अन्य जगहों की भांति बांकुड़ा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सरकारी कार्यालय से विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के द्वारा आयोजित योग दिवस पर युवाओं के साथ बुजुर्ग लोगों को भी तादाद अधिक से अधिक संख्या में देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के द्वारा योग दिवस मनाया गया, जो कि पोस्ट के प्रभारी तपन कुमार राय की देखरेख में आयोजित हुआ। शिविर का आयोजन पीएफ बैरक प्रांगण में हुआ, जिसमें सभी अधिकारियों से लेकर कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के भी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इससे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने शहर में जागरूकता रैली निकाली एवं लोगों को योग के प्रति जागरूक कराया। जिले के बेलियातोड़ जेमिनी राय कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पालन किया गया। कॉलेज प्रांगण में कॉलेज के अध्यापकों से लेकर छात्र छात्राओं ने योग शिविर में हिस्सा लिया। अन्य तरफ पतंजलि योग प्राणायाम शिविर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो कि बांकुड़ा धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसमें बुजुर्गों की संख्या अधिक से अधिक देखने को मिली, जिनमें उत्साह भी देखा गया। बताया जाता है कि धर्मशाला में आयोजित योग शिविर का हिस्सा बने बुजुर्ग नागरिक नियमित रूप से योगासन करते हैं। बांकुड़ा अनुशीलन समिति द्वारा कुचकुचिया में योग दिवस मनाया गया। समिति के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक राणा दास, अध्यक्ष राजकुमार सुरेखा, संपादक प्रदीप नाग, समीर कुमार दास, अजित कुमार कुंडू, भोम्बल आचार्य, जितन कर्मकार, मनिका नाग, सोमा रॉय व अन्य उपस्थित थे। মানে যোগ দিবসে শুধু যোগ দিবস আজকে আমরা পালন করি, শুধু সেটা নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে যোগার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা প্রত্যেকের মানুষের প্রয়োজন দরকার। প্রত্যেকে যে যোগটা করে কেন করবে, কী জন্য করবে সেটাও দরকার জানা। মানে প্রত্যেকের শরীরের সুস্বাস্থ্য এবং শরীরকে ভালো রাখার জন্য শুধুমাত্র যোগই একমাত্র কার্য যেটা দ্বারা সম্ভব, সব কিছুই সম্ভব, যেটা আমাদের শরীরকে ঠিকমতো রাখে। এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর একটা যোগ যদি অভ্যাস করে থাকি আমরা প্রতিনিয়ত, আমাদের শরীরের সাথে মনের, আত্মার বা পরমাত্মার যে মিলন বা যেটা সম্ভব আমাদের, সেটা আধ্যাত্মিক যে চিন্তাভাবনা সবটাই আমাদের মধ্যে থাকে। আর এটাতে আমাদের কি আমাদের মানে জীবনকে অতিবাহিত করতে বা জীবনের মানে বছরের পর বছর যেভাবে আমরা লাইফ স্পেন্ড করি, এটার উন্নতি হয় আমাদের। এইটাই আমি বলবো। আমরা দেখছি বর্তমান সময়ে যারা বিভিন্নভাবে রোগে আক্রান্ত, সুগার, প্রেশার, তারা কি আপনারা জানেন আজকে 21 জুন বিশ্ব যোগা দিবস। আমরা এটা প্রতি বছরই করি। এটা করার উদ্দেশ্য কি? এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা জানেন নিত্যদিনে মানুষের সুগার, প্রেশার থেকে শুরু করে হার্ট অ্যাটাক, যে কোনো জিনিসের মানে নিরাময় আপনার মেডিসিন থেকে আপনি অনেক দূরে থাকতে পারবেন এই যদি যোগাভ্যাস করেন। তাই আমাদের উদ্যোগ বাঁকুড়া মর্নিং গ্রুপ থেকে যে প্রতি বছর আমরা যোগাভ্যাস করি এবং 21 জুন, তো সেই হিসাবে আমরা মানুষকে সচেতন করার জন্য এই যোগ দিবস পালন করছি সকলকে নিয়ে। এটা কি একদিন করলে হবে না প্রতিদিন করা হবে? আমরা এটা প্রতিদিনই করি, প্রতিদিন নিত্যদিন। আমরা অনেকেই আছে যারা ট্রেনার আছে তারা আছে, এবং যারা যোগাভ্যাস করে 3-4 জন আছে তারা কন্টিনিউ করেন। কতটা প্রয়োজন এটা খুবই প্রয়োজন। আপনারা সত্যি বলছি, এটা খুবই প্রয়োজন। কারণ আমরা সত্যি উপকারিতা পেয়েছি। কারণ হচ্ছে যতদিন আমি মাঠ করছি, প্রায় বেশিরভাগ মানুষই দেখেছি মানে মাঠে আসে সুগার, প্রেশার, না হয় হার্টের কিছু একটা প্রবলেম নিয়ে আসে। কিন্তু যবে থেকে কিছু মানুষ এখানে যোগাভ্যাসে নাম লিখিয়েছে বা যারা যোগাভ্যাস করছে, তাদের সত্যি মানে যে উপকারিতা পেয়েছে আপনি বলে বোঝাতে পারবো না। মেডিসিন থেকে দূরে রাখে যোগাভ্যাস। আমি বারবার ধরে আপনার চ্যানেলের মাধ্যম দিয়ে বলবো যে আপনারা যোগাভ্যাস করুন এবং নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আমার নাম সঞ্জীব সরকার। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
विश्व योगा दिवस पर उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल में योग शिविर आयोजित की गई। शिविर में विद्यालय के एनसीसी छात्र और प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों ने हिस्सा लिया। योग शिक्षिका मंजू बर्णवाल ने योग प्रशिक्षण कराया। बच्चों को 5 प्राणायाम हमेशा करना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि मयूरासन, सूर्य प्रणाम और ओम का उच्चारण नाभि से होता है। दृष्टि बंद करने के बाद जब आंखें खुलने से नई अलोकित है। ओम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, जिनका शरीर, मस्तिष्क, हथेली, हृदय की मांसपेशी और पैर की मजबूती से जुड़ी हुई है। योग शिविर में शक्ति विश्वकर्मा, चंदन विश्वकर्मा, सुधीर कैत, सैवल सेन गुप्ता, राजकुमार साव, नरसू जामा खान, राकेश राम और पिंटू राजभर आदि शामिल होकर विश्व योगा शिविर को सफल बनाया। योग 2 शब्द से, योग का अर्थ है जोड़ना। योग 2 शब्द से मिलकर बना है। योग 2 अक्षर से योग जो अर्थात जोड़ना। यह हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है और यह प्राचीन हमारे देश में पिछले 5000 साल से योग चला आ रहा है। सर्वप्रथम आदि योगी कहते हैं जिन्हें, वो स्वयंभू शंकर भगवान है, जो योग के बहुत बड़े आदि गुरु माने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने इसकी शिक्षा सप्त ऋषियों को दी और फिर सप्त ऋषियों से धीरे धीरे योग आचार्यों में आपके क्या बोलते सर, आगे बढ़िए। हाँ, योग आचार्यों, उसके बाद योग आचार्यों के पास आया और उसके बाद धीरे धीरे ये हम लोगों तक गुरुकुल के जो गुरु होते हैं वहाँ तक पहुँचा और उसके बाद हम सभी के पास भी धीरे धीरे आता गया। लेकिन वर्तमान में जो इसका आश्रय जाता है वह महर्षि पतंजलि के जो संस्थापक है गुरुदेव रामदेव को जाता है। उन्होंने इसे घर घर तक इसे पहुँचाने में मदद की। आपका नाम क्या मैडम? मंजू बर्णवाल। एनसीसी के लगभग 150 बच्चे, जिसमें नवनियुक्त बच्चे भी हैं, इन बच्चों को आज 10वीं योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर मैंने हार्दिक अभिनंदन दिया है। और ये बच्चे योग सीख करके अपने नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का नाम भी रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम और साथ ही साथ राज्य और देश को भी। आज 177 से भी अधिक देशों में, पूरे विश्व में इस योग को मनाया जा रहा है। उद्देश्य एक ही है कि हम अपनी संस्कृति की पहचान विदेशों में कराएं कि हम क्या थे, क्या है और क्या होने वाले हैं। धन्यवाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल रेल पार्क के लोगों ने आज रेलवे द्वारा अंधेरिया पुल को बंद करने के लिए फैसले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस बारे में स्थानीय निवासी शाहनवाज खान उर्फ रॉकी ने बताया कि ये पुल अंग्रेजों के जमानों का बना हुआ है। स्कूल से होकर रेल पार्क की पूरी जनता आना जाना करती है, चाहे वो बाजार जाना हो, चाहे वो व्यवसाय के लिए आना जाना करना हो या फिर बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो। हर एक इंसान इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। बगल में एक नया पुल बनाया गया है, लेकिन उस पुल में हमेशा गंदा पानी जमा रहता है, जबकि बगल में ही मंदिर और मस्जिद है। लोगों को गंदे पानी से होकर वहां जाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब रेलवे द्वारा इस पुल को बंद करने की बात कही जा रही है, जिसका यहाँ के लोगों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो नया पुल बनाया गया है उसकी रखरखाव करनी होगी और इस पुराने पुल को हरगिज बंद नहीं होने दिया जाएगा। मजदूर आदमी है जो आना जाना करता है रोज, उन लोग कैसे आना जाना करेगा? आप जो पुल बना करके दिए हैं वो पुल का तो ये हालत है, 12 महीना पानी जमा हो रहता है। 12 महीना जाम रहता है पूरा पुल में। जितने भी लेडीज है, औरत है, हम लोग का महिला लोग है, नया पुल में पानी भर रहता है और यही पुल से
पैदल आना जाना होता है, बाइक साइकिल मोटरसाइकिल सब इस पुल से लेके आना जाना करता है। सुबह सुबह जितना आप लोग यहाँ पर ये अंधेरिया जो पुल है ये लगभग 100 साल पुराना ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ ब्रिज है। और हम लोग का जो रेल पार का आबादी है, इतना घना आबादी 4-5 लाख आदमी से आना जाना जो होता है इस रास्ता से होता है। नया पुल बना के दिया गया लेकिन आज तक सक्सेस नहीं है। आज 3 साल से इस पुल में 12 महीना पानी जमा हुआ रहता है। इस साइड में मस्जिद है, इस साइड में मंदिर है, दोनों का आस्था का सवाल है। और हर रास्ता ये बोलता है कि पाक से साफ सफाई अपना आना जाना करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको आदमी इतना दिन से बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए चलो जो पैदल आने जाने वाला है इस तरफ से आना जाना कर लेता है। सुबह सुबह पूरा यहाँ हम लोग का पूरा रेल पार का सारा आवाम उठ करके सारा पब्लिक जो जाता है सुबह सुबह, गार्जियन पेरेंट्स लोग जितना भी बच्चे लोग को लेके जाता है स्कूल, तो लेके जाता है इसी पुल से लेकर के जाता है। मोटरसाइकिल साइकिल जो मंडी लगता है सुबह बाजार का, उसमें रिक्शा से ठेला से जो आना जाना होता है इससे होता है, उससे नहीं हो पाता है। वो ऊंचा भी है बहुत और उसमें पानी जम जाता है। तो जब आप लोग को पता है, जब रेलवे को ये बात पता है कि ये ऑप्शन है हमारे लिए, हमारे पूरे इतने बड़े आबादी का इलाका का ऑप्शन यही है, वहाँ पे पानी जमने का बाद हम लोग सब यहाँ से आना जाना करते हैं, तो इसको क्यों बंद किया जा रहा है? इसको बंद करना तो जायज़ नहीं है ना। ये तो एक तरह से नाजायज़ काम हो गया, पूरा आवाम का खिलाफ में काम हो गया। इसको बंद करने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि जो हम लोग इसको बनाने के बाद ये जो इसका अवस्था जो दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, लाइट खत्म कर दिया गया, गड्ढा उड्ढा हो गया, इसको रिपेयरिंग करना चाहिए। आप रिपेयरिंग नहीं करके मेंटेनेंस नहीं चाह रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि रास्ता को बंद नहीं किया जाए, इसका रिपेयरिंग करके इसको ठीक किया जाए, इसको बहाल किया जाए। अगर बंद करेगा तो पूरा आवाम मिलकर करके DRM ऑफिस जाएगा। आप लोग रेलवे से अभी होने दीजिएगा कि नहीं? नहीं, काम यहाँ पे अभी नहीं होगा। आवाम का कहना है कि रास्ता बंद नहीं होगा, काम होने का मतलब नहीं है। काम कीजिए आप, काम करने के लिए पूरा आवाम साथ है, लेकिन मेंटेनेंस रास्ता ना बंद करने के लिए कोई आवाम साथ नहीं देगा। मेंटेनेंस के लिए आपको आवाम खड़ों का काम करवा लेगा। आपका नाम बोलिए। मेरा शाहनवाज खान रॉकी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। शुक्रवार सुबह विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सीतारामपुर स्थित टैगोर इंस्टीट्यूट के प्रांगण में मनाया गया। उक्त विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मुख्य रूप से आसनसोल रेल मंडल के APO श्री राजेश कुमार पासवान उपस्थित थे। योग दिवस को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में आसनसोल वेलफेयर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ चक्रवर्ती का महत्वपूर्ण योगदान था। योग दिवस में सीतारामपुर CYM देवाशीष जायसवाल, ASI PW सीतारामपुर राम नंदन प्रसाद, सीतारामपुर RPF इंस्पेक्टर लखन मीना, इंस्पेक्टर RPF मदन पासवान, कमलेश कुमार मेडिकल विभाग सीतारामपुर, SSI इलेक्ट्रिकल सीतारामपुर रंजन उपाध्याय के साथ ERMU, ERMC, PRKS यूनियन के सदस्य मौजूद थे। विशेष रूप से समाज सेवी संस्था आदिकन फाउंडेशन NGO के चेयरपर्सन संतोष कुमार वर्मा ने भी रेलवे के साथ योग दिवस पालन किया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में APO आसनसोल रेल मंडल के राजेश कुमार पासवान ने कहा कि ये वैश्विक परिघटना प्राचीन भारतीय योग पद्धति तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसका गहन प्रभाव को मान्यता देती है। रेलवे कर्मचारी, ऑफिसर तथा
रेलवे परिवार के हम लोग सभी सदस्य जहाँ विश्व योगा दिवस पर योगा करने के लिए तथा इसको विश्व स्तर तक घर घर तक योगा पहुँचाने के उद्देश्य से अगला योगा यहाँ सामूहिक तौर से पूरे रेलवे कर्मचारी को यहाँ इकट्ठा होकर योगा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में सर यहाँ पर आज 21 जून के दिन हम लोग यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में, और हम लोगों ने यहाँ पर सभी सम्मिलित होकर एक साथ योगा दिवस का समारोह पूर्ण रूप से समापन किया था। और सर आज मानी सीतारामपुर के कितने स्टाफ यहाँ शामिल हुए आज? जी 60 से ज़्यादा, सब कम से कम यहाँ पे 60 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए हैं। विभिन्न विभिन्न विभागों एवं यहाँ रेलवे कॉलोनी के भी लोगों को आमंत्रित किया गया था। हमारे RPF एवं अन्य विभागों के भी टीम विशेष रूप से आमंत्रित की गई थी। और टैगोर इंस्टीट्यूट सर इसी तरह से सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग प्रयास करेंगे कि हर जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं डिविजनल कार्यक्रम हैं उसको हम लोग इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आगे प्रसारित करते रहें। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम राजेश कुमार पासवान, सहायक कार्मिक अधिकारी आसनसोल। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नदिया तेहट्टा के तृणमूल विधायक तापस साहा करीब 2 घंटे बाद CBI कार्यालय निजाम प्लेस से बाहर आए। विधायक तापस साहा सुबह 11:15 पर निजाम प्लेस स्थित CBI कार्यालय में उपस्थित हुए। उन्हें शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में तलब किया गया था। निजाम से निकलते समय पत्रकारों से जब उनसे पूछा कि CBI अधिकारियों ने उनसे क्या सवाल पूछा, प्रश्नों का अपने समुचित उत्तर दिया। इसका जवाब भी उन्होंने कहा कि CBI ने जो पहले पूछा था वही आज भी पूछा है। उनसे बात करने दीजिए ना, थोड़ा सा बात करने আজকে আবার আপনাকে তলব করা হয়েছে? আবার তলব করা হয়েছে, আমি সহযোগিতা করব। কেন কেন আর কিছু চাওয়া হয়েছে? জলটা দিদি भैया एक बात बोलिए, वो तो खड़े होके दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह हरिपुर बाजार के दुर्गा मंदिर प्रांगण में हरिपुर पतंजलि योग समिति की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया।
10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिविर का आरंभ वेद मंत्र उच्चारण के साथ किया गया। वहीं इसके पश्चात योग शिविर का आयोजन किया गया, जिस दौरान खड़े होकर, बैठकर तथा लेटकर आसन किया गया। वहीं इस दौरान कपाल भारती, अनुलोम विलोम सहित विभिन्न योगासन किया गया। योग प्रशिक्षक मनोज बर्णवाल, दिनेश पासवान, मीना रानी घोषाल, केदार बर्णवाल, प्रदीप बर्णवाल द्वारा लोगों को योगासन कराया गया तथा योगा करने से होने वाले लाभ के विषय में भी जानकारी प्रदान किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक मनोज बर्णवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत सहित लगभग 200 देश योग दिवस का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि रोग मुक्त तथा दवा मुक्त जीवन यापन करने के लिए नित्य दिन योग करें, योग रखें निरोग, इसीलिए योग करें और रोज करें। योग प्रोटोकॉल का पालन किए, अंतर्राष्ट्रीय 10वां योग दिवस पालन किए, जो कि आज हमारे देश ही नहीं पूरा विश्व के 200 से अधिक देशों में पालन किया जाएगा और किया जा रहा है। हमारे स्वामी जी श्रद्धेय रामदेव जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों को रोज़ दैनिक योग कक्षा चलता है। विगत 10 वर्षों से हम लोग दैनंदिन योग क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमारे भाई और बहन सभी योग साधक साधिकाएँ आते हैं और दैनिक योग का लाभ लेते हैं और हम लोग रोग मुक्त जीवन और दवा मुक्त जीवन जी रहे हैं। योग से कितना लाभ होता है ये कहना असंभव है, जितना भी कहें कम है। इसीलिए सभी व्यक्तियों के लिए करें योग, रहे निरोग, रोज करें योग करें। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं यहाँ का योग शिक्षक हूँ मनोज बर्णवाल। हमारे साथ में हमारे योग शिक्षक हैं श्री दिनेश पासवान जी, केदार बर्णवाल जी, प्रदीप बर्णवाल जी, हमारी माता मीना रानी घोषाल जी और हमारे सभी भाई बहन योग साधक साधिकाएँ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में रानीगंज में योगासन कार्यक्रम का आयोजन रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा किया गया। शुक्रवार को रानीगंज के हील बस्ती में आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला की विभिन्न जगहों से 120 प्रतिभागियों ने कुल 18 विभाग के विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। रानीगंज योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संपादक और प्रशिक्षण योग गुरु उदय धीवर एवं संस्था के सभापति निर्मल्य सेन गुप्ता ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। पीछे নমস্কার, আমি রানীগঞ্জ যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে বলছি। আজকে 10তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, সেই উপলক্ষে রানীগঞ্জ অঞ্চলের সকল অধিবাসীদের এবং আমার সেন্টারের সকল সদস্যা এবং অভিভাবকদের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানে যে সকল উপস্থিত হয়েছিলেন আমন্ত্রীবৃন্দরা, তাদেরকেও আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন। আমরা খুব খুশি এবং তাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান যোগাসন প্রতিযোগিতা এবং অ্যারোবিক্স শো হয়ে গেল। আমাদের যোগাসন প্রতিযোগিতা হবে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে যোগাসন প্রতিযোগিতা হবে এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হবে। আর এই মঞ্চে আমাদের আরেকটা পুরস্কার দেওয়া হবে, যারা ওয়ার্ল্ড কাপে গোল্ড মেডেল এবং সিলভার মেডেল অর্জন করেছিলেন, সেই সকল ছাত্রছাত্রীদের আমরা এই মঞ্চে পুরস্কার দেব। কটা গ্রুপ হচ্ছে, কিসে কিসে হচ্ছে? আমাদের আজকে গ্রুপ আছে, 9খানা গ্রুপ আছে, ছেলে এবং মেয়েদের মিলে 18খানা গ্রুপ টোটাল, এবং তাদের আমরা যোগাসন প্রতিযোগিতা করবো এবং পুরস্কার করবো। কত পার্টিসিপেন্ট আজ? আমাদের আজকে পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে 120 জন। নমস্কার, আপনার পরিচয়টা দিন একটু। আমি হচ্ছে উদয় ধীবর, রানীগঞ্জ যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ফাউন্ডার, সেক্রেটারি এবং কোচ। নমস্কার, আমরা আমাদের রানীগঞ্জ যোগা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, আজকে আপনারা জানেন যে আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সেই যোগ দিবস উপলক্ষে আমরা আমাদের সেন্টারের পক্ষ থেকে খুদে খুদে যারা শিশুরা আছেন, মায়েরা আছেন, যারা কম্পিটিশনে নামছেন, প্রায় 120 জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিযোগিতা করব।
আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে অ্যারোবিক ডান্স ইতিমধ্যে হয়েছে। যারা আমাদের শিক্ষিকা আছেন এবং শিক্ষিকার সঙ্গে বেশ কয়েকজন মহিলা তারা অ্যারোবিক ডান্স করলেন। বাচ্চারা ইতিমধ্যে কিছু জিমনাস্টিক যোগা আমাদের দেখালেন। আমরা আজ বিকাল অবধি এই অনুষ্ঠান চলবে। আমরা চাই এর মধ্যে দিয়ে সুস্থ মনের মানুষ তৈরি হোক, এই কামনা আমি করছি। পরিচয়টা আজ আমার নাম হচ্ছে নির্মল সেনগুপ্ত। আমি এই রানীগঞ্জ যোগা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমানে সভাপতি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।